A very good evening to all of you, and thanks for joining for this first lecture series, first of the lecture series, which is named as the Professor Rakesh Popli and Mrs. Rama Popli Distinguished Lecture Series on Common Man Science. You know, at IIT Kanpur, we keep doing our little research, probably living in our own small silos, but it's very important that we connect actually with society. And this particular lecture series is in that effort, and we actually look forward to some sort of creating a long-term connect. This is going to be a yearly series, and basically inculcate, in everybody the scientific outlook, which is probably associated with almost everyday phenomena. So in that respect is how this series has been sort of thought of, and we are extremely grateful to the Popli family who have put up some donation, of course, but the idea of getting this to a wider audience. And so Professor Rakesh Popli was with us from 1981 to 1983, and he has been committed to upliftment through science education, and has sort of affected children immensely across his. You will see a little bit introduction to his life and so on. And we also have Mrs. Rama Popli, who has been an educationist and expert on elementary education for last 40 years, and she'll also step up and say a few words after I finish. And of course, we could not have a better person to start this series. So we have Professor H.C. Verma. I don't know whether anybody knows his first two names. So I don't know whether your books write Harish Chandra Verma, but I'll say it. They do. Okay, fine. So, of course, he has been with IIT Kanpur as a faculty member from 1994 onwards. 1,000+ experiments to do it at home. I mean, H.C. Verma requires no introduction. He is probably the most popular science personality in the country, if I am not wrong. Right? And so welcome, sir. Yeah. And yes. I think the next, before, I don't want to get into the way of all the excitement that's going to happen, may I request the Popli family and Professor Verma to come on the stage and light the lamp, and then we can sort of begin the whole process. So request Mrs. Rama Popli, Shivaranjani Verma and Abhimanyu Popli to please step up and help lighting the lamp, please. Yeah, please take a seat. So, yeah. Madam, please hand over the bouquet. Yeah.
So this will be followed by a short video which sort of expounds very briefly the life and works of Professor Popely. And may I request the AV team to play the video. खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में। मुस्कुराते खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में। स्तुति निंदा लाभ लोभ यश शक्ति चाव से, कर्म क्षेत्र में चले सहज स्नेह भाव से। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। अर्चना केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना। दीनहीन सेवा ही परमेष्ठी अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना। मन वाचा कर्म से, मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो। शिव सुंदर नव समाज विश्व वंद्य हम गढ़े। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। समिधा सम हम जले, समिधा सम हम जले। और ये विचार आया कहाँ से? बच्चे की सहज प्रक्रियाओं को अनुभूत करके बनी पद्धति है। जैसे बच्चा दीवारों पे लिखना चाहता है तो भांति भांति की दीवारें तैयार कर दी गई ताकि उन पर बच्चा लिख सके। और हर आयु वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा उस आधार पर दीवारें तैयार कर दी गई। नीली दीवारें छोटे बच्चों के लिए, कक्षा 1 और 2 के लिए हरी दीवारें, तीसरी चौथी पांचवी के लिए भूरी दीवारें। तो बच्चों की सहज प्रक्रियाओं को सीखने का मार्ग बनाना ही पाणिनि पद्धति है। Yeah. May I now request Mrs. Rama Popely to please come up on the stage and share a few words. Immediately after that, we will start Professor Verma's lecture. धन्यवाद प्रोफेसर हर्षवर्धन, पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर H.C. वर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित पूरा जिज्ञासु वृंद, आप सबको मेरा अभिवादन अभिनंदन।
मेरे लिए आज ही बहुत खुशी का, प्रसन्नता का, एक संतुष्टि का दिन भी है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डॉक्टर राकेश पोपली की आम आदमी के विज्ञान विषय पर एक व्याख्यान श्रृंखला, और ये व्याख्यान श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं पद्मश्री विख्यात बच्चों के प्रिय, जैसा कि आपने कहा कि विज्ञान में सर्वाधिक जाने वाला नाम पद्मश्री एच.सी. वर्मा जी के द्वारा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ का पूरा किचन तैयार है हमें जीवन से जोड़ने के लिए। तो आपका हार्दिक अभिनंदन, आपने इसको स्वीकार किया। अब से करीब 4 दशक पूर्व लगभग इसी समय पहली बार इस कैंपस में मेरा आना हुआ था, और जिस VH में आज हम गेस्ट बनकर रुके हैं वहीं पर हम रुके थे। और ये वो समय था जब डॉक्टर पोपली फिज़िक्स डिपार्टमेंट की न्यूक्लियर लैब को देख रहे थे, यहाँ की फैकल्टी थे। बहुत प्यारा वातावरण था, सुंदर एकेडमिक एक्सेलेंस वातावरण था, बहुत प्यारे दोस्त थे, उनका मनचाहा वातावरण था। लेकिन कहीं कुछ ऐसा था जो रातों को सोने नहीं देता था। क्या था वो था मन की वो चाहत जो उनके अंदर अमेरिका में पर्ड्यू जाने से पहले ही पनप रही थी। और वो चाहत थी देश के बच्चों के बीच में शिक्षा, विज्ञान, इसके माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को स्थान मिलना चाहिए। ये कैसे हो? और इसके लिए वो पूरे देश का भ्रमण भी कर रहे थे। और इसी बीच में एक सुदूर, यहाँ से बहुत दूर दक्षिण बिहार का एक स्थान, गुमला ज़िले का बिशनपुर गांव ब्लॉक, वो चुन लिया गया था और वहाँ पर जाने की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ से जाने के बाद भी हमारा इस कैंपस से एक नाता हमेशा जुड़ा रहा, क्योंकि ये स्थान दिल्ली से जाते समय रास्ते में पड़ता था। तो कई बार हम ब्रेक जर्नी करके अपने यहाँ के मित्रों से मिलते, अपनी बात उनसे कहते, उनके समाधान भी लेते, और इस तरह से ये क्रम चल रहा था। लेकिन 2007 में एक लंबी बीमारी के बाद उनका शरीर पंच तत्व में लीन हो गया, और सचमुच ऐसा लगा जैसे इस प्यारे से कैंपस से हमारा नाता हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन थोड़े ही समय में हमारी बेटी शिवरंजनी ने यहाँ M.Tech के लिए एडमिशन लिया, और उसके अगले ही साल छोटे बेटे दिव्य रतन ने यहाँ B.Tech के लिए। और एक बार फिर से इस कैंपस से नाता जुड़ा, एक माँ के रूप में, अभिभावक के रूप में। ये भी बहुत गौरवान्वित समय था मेरे लिए। और 2014 में जब मेरे छोटे बेटे का कन्वोकेशन यहाँ पूरा हुआ, अंतिम बार मेरा आना हुआ था, और सचमुच उस समय हृदय से आभार किया था यहाँ के सुंदर वातावरण को, जिसने हमारे पूरे परिवार को एक दिशा दी थी, और बहुत सुंदर मनमोहक स्थान हमारे लिए हमेशा रहा था। हम हमेशा IIT कानपुर से जुड़े रहे थे। तो लगा ये क्रम अब पूरी तरह से समाप्त हो गया उसके कन्वोकेशन के बाद। लेकिन कुछ सहयोग पिछले दिनों में ऐसा बना कि एक बातचीत शुरू हुई, और हम इस विषय पर आए कि हमें एक श्रृंखला उनके काम के लिए करनी चाहिए। इसमें एक माइलस्टोन था कि अभी मार्च में ही उनकी किताब मिनिमम साइंस फॉर एवरीबॉडी, इसका लोकार्पण वर्ल्ड ट्रेड फेयर में हुआ था। और उनके जाने के बाद उस पुस्तक का जो स्वागत समाज में हुआ, वो हमारी प्रेरणा बना कि उनके कार्य की इस देश को बहुत ज़रूरत है, उस सोच की बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए परिवार में बच्चे आगे आए और उन्होंने इस काम को समन्वित किया, और IIT कानपुर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्वीकारा, स्वागत किया, जिसके लिए हम IIT कानपुर के बहुत 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 आभारी हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से एक IIT का प्रोफेसर एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर सभ्यता के बहुत कम चिन्ह मौजूद हैं, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं है। ऐसे स्थान पर वो क्या करते होंगे? तो वो मैं आपसे, चूँकि मेरे पास तो बहुत सारी घटनाएं हैं, पर एक घटना आपसे शेयर करूँगी। असल में बिशनपुर जो स्थान है वो पूरी तरह से घाटी और जंगलों का स्थान है। वहाँ पे जंगल, नदी, झरने बहुत अधिक है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर विषय बिल्कुल ज़ीरो था और कोई रुचि भी नहीं थी, एक तरह का इनर्शिया था। और ऐसे स्थान पर हम लोगों ने काम शुरू किया था। उसी समय की एक छोटी सी घटना मैं आपसे जिक्र करती हूँ। हमारे यहाँ पर विकास भारती नाम से NGO को मिलकर स्थापित किया, और उसमें एक छोटा सा बच्चा था, मात्र 22 वर्ष की आयु थी, दिग्विजय सिंह। और यह बच्चा तुरंत हमारी संस्था में आया ही था।
जुलाई 86 का समय होगा ये, कि वो पूजा कर रहा था और पूजा करते हुए उसे ऐसा लगा कि पैर में कुछ चुभा और उसने उसको हाथ से जड़ा, पैर झटका और तुरंत ही पूजा करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसको फिर लगा कि फिर कुछ चुभा। इस बार जब उसने देखा तो सचमुच वो कांप गया और बहुत ज़ोर से चिल्ला उठा, क्योंकि वहाँ पर काले रंग का चमकीला सा सांप था। जिस चौकी पर वो खड़ा था उसके नीचे छुपने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी ही देर में सब आसपास इकट्ठे हो गए और उस सांप को पकड़ करके मटकी में बंद करके कपड़े से ढक दिया गया। और 250 मीटर दूर ही अपना कार्यालय था, वहाँ से वो उत्साह में पैदल ही चला आया। उसके पास में एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी, ना तो प्रशिक्षित डॉक्टर थे वहाँ पर और ना ही एंटी वेनम सीरम था। तो उसको बहुत जल्दी, जो 50 किलोमीटर दूर अगला हॉस्पिटल था, वहाँ तक ले जाने के क्रम में ये बात पूरे एरिया में आग की तरह फैल गई। और जो झाड़ फूंक वाले लोग थे वो अपने अपने विश्वास और अपनी प्रक्रियाओं को लेकर उस सड़क पर खड़े हो गए जहाँ से उसको लेकर जाना था। तो हर किसी ने अपनी ओर से मंत्र किए, फूका, बहुत किया, लेकिन 50 किलोमीटर दूर जब हॉस्पिटल में पहुँचे वहाँ भी प्रशिक्षित डॉक्टर तो थे लेकिन एंटी वेनम सीरम नहीं था। फिर उसको रांची ले जाने की बात हुई, जो वहाँ से करीब 120 किलोमीटर दूर था। तो इस प्रकार जो रास्ता 5 घंटे में पूरा होता वो रास्ता 12 घंटे में पूरा हुआ और रांची पहुंचने से पहले उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस घटना ने हम सबको बुरी तरह हिला दिया। उस समय डॉक्टर पोपली अमेरिका में धन संग्रह के लिए गए थे। उन्हें जब ये समाचार मिला, अमेरिका के मित्रों ने, अमेरिका के समाज ने उन्होंने बहुत सारी इस बारे में चर्चा की और एक प्रकार की किट जो प्रायः सांप के काटे जाने पर उपयोग होती है वो वहाँ उन्हें काफ़ी मात्रा में भी दी और यहाँ आके उसका हमने भारतीय संस्करण भी बनाया। तो जब वो वापस लौटे तो उन्होंने एक तरह से मन को बहुत छू गई थी ये बात। तो गांव के जितने लोग सांप को जानते थे, सांप को पकड़ते थे, उसका इलाज करते थे या सांप के बारे में भ्रांतियाँ थी, उन सबको इकट्ठा किया और ज़ूलॉजी के HOD सर के साथ में मिल कर के एक टीम बनाई। एक और गांव के वो लोग जो सांप पकड़ते थे और एक और ज़ूलॉजी के वो हेड जो सांप भले न पकड़ते हों लेकिन उसकी पूरी जानकारी रखते थे। और इसके साथ ही मद्रास स्नेक सेंटर से भी उन्होंने संपर्क किया, सारी जानकारियों को इकट्ठा करके बहुत सरल हिंदी भाषा में उन्होंने सांप और हमारा जीवन पुस्तक लिखी। इसके 2 परिणाम बहुत स्पष्ट हुए। एक तो ये हुआ कि लोगों ने अनावश्यक सांप को देखकर मारना छोड़ा और दूसरा ये हुआ कि वैसी स्थिति में हमें क्या उपाय करना है इसके प्रति भी लोग प्रेरित हुए। तो ये एक छोटी सी घटना उनकी कार्यशैली को बताती है। यहाँ एक विषय और कहना चाहूँगी जो राकेश जी के जीवन से बहुत गहरे से जुड़ा था। जैसा अभी प्रोफेसर हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि साइंस लैब टू लैंड, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में एक विज्ञान है, उस विज्ञान से परे जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो वो कॉमन मैन साइंस क्या है, क्या वो सबके लिए समान है, ऐसे कई विचार उनके मन में रहे और उन्हें लगा कि हमें अगर एक प्रबुद्ध, सभ्य और संवेदनशील समाज रचना है तो हमें आम आदमी का विज्ञान ही एकमात्र चीज़ है जिसे हमें पाना होगा, एक वैज्ञानिक तरीका काम करने का। वो कैसे हो? थिंक साइंटिफिकली, एक्ट साइंटिफिकली। विज्ञान प्रसार का जो ध्येय वाक्य रहा, इसके साथ वो हमेशा कनेक्ट रहे। तो इस प्रकार वो विज्ञान की इस प्रक्रिया को कैसे बच्चों में लाते थे, इसका बड़ा अनोखा प्रयोग मतलब तरीका उनका था। इसका कुछ अनुभव आज हमने सुबह जब हम डॉक्टर SC वर्मा जी के लैब में गए वहाँ भी अनुभव किया। बच्चों में साधारण क्रियाओं से कर करके उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करना और जादू लगने जैसी चीज़ के कारण तक पहुँचना, इस तरह से वो बच्चों में विज्ञान के प्रयोग करते रहे। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि एक दिन था 4 दशक पूर्व जब हमने ये स्थान छोड़ा था कुछ ऐसा करने की चाहत और खोज के साथ। आज पुनः मैं वापस हूँ। डॉक्टर पोपली आज शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप सबके रूप में, उनको सुनने की जिज्ञासा के रूप में वो यहाँ मौजूद हैं और आप सबके माध्यम से हैं। और मैं आशा करती हूँ कि उनके मन का जो ये भाव था कि आम आदमी के जीवन में विज्ञान उतरे और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही संभव है, आप सब उसके एम्बेसडर बनने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और पुनः डॉक्टर SC वर्मा और इस संस्थान का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
thank you very much, Mrs. Popli, for this very inspiring start. Request Professor Verma to come up and take hold of the stage. Thank you. बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि राकेश जी के साथ मेरा भी कुछ कुछ संबंध रहा है और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की पत्रिका में उनके लेखों की श्रृंखला हमेशा मुझको बहुत भाती थी और उसमें से बहुत सीखने को मिलता था। प्रत्यक्ष उनके साथ बातचीत करने का भी मौका मिला और उनका जो विशुनपुर का काम था उसकी भी जानकारी छन छन करके, और विशेष करके मैं सांपों के बारे में जो उनका कार्य था उसकी जानकारी भी मेरे को मिलती रही थी। तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि उनके स्मृति में जो व्याख्यान माला IIT कानपुर में शुरू हो रही है उसका पहला लेक्चर देने के लिए मेरे को चुना गया और मेरे को अवसर दिया गया। इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और धन्यवाद करता हूँ संस्थान का, अपने डॉक्टर हर्षवर्धन वानारे जी का, जिन्होंने शायद ये सोचा हो कि ये उद्घाटन मुझसे ही कराया जाए। जो कॉमन मैन का साइंस ये जो विषय है, ये वास्तव में जो कॉमन मैन होता है उसमें तो साइंस कूट कूट करके ही भरा होता है और हम लोग बाद में अनकॉमन हो जाते हैं पढ़ लिख करके, तो वो विज्ञान भूल जाते हैं। मैंने तो छोटे बच्चों का जब परिवार में देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे परिवारों में देखता हूँ, तो लगता है कि साइंस तो बहुत नैसर्गिक रूप से इनके अंदर में स्वाभाविक रूप से है। हम लोग जब उसका फॉर्मलाइजेशन करते हैं तब फिर वो कुछ गड़बड़ होना शुरू होता है। छोटे बच्चे जितने प्रश्न करते हैं, विज्ञान का क्या मतलब है? विज्ञान का मतलब है कि आप कुछ देखो तो आप उसके अंदर घुसने की कोशिश करो कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ऐसा कल तो ऐसा हुआ था, आज ऐसे क्या हो गया। तो ये जो विचार, वो जो मीमांसा है, जो सोचने की प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में जो भी कुछ आप देखते हैं प्रकृति के बारे में, उसको जो सोचने की प्रक्रियाएं हैं वो होनी चाहिए। विज्ञान का तो वही मतलब है, आपको इक्वेशंस मालूम हो या ना हो। और छोटे बच्चों से आप सोचना शुरू करें तो आप देखें कि कितना सारा विज्ञान वो खुद से सीख करके और तब फिर स्कूली जीवन के अंदर में प्रवेश करते हैं। तो आप सोचें कि अगर एक बहुत ही छोटा बच्चा है, मैंने तो देखा गोद में जो बच्चा है, जो बोल नहीं पा रहा है, गोद में बच्चा है, आप देखो ना वो अपने माता पिता को कैसा पहचानता है, अपने परिवार वालों को कैसा पहचानता है, और बाहर का कोई आता है तो उसके पास जाने में कई बार झिझकता है और नहीं जाता है, उसकी गोद में लेने की कोशिश करता है तो वो झिझकता है। तो उसकी चल रही है, उसकी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है सोचने की, समझने की, जानने की, स्मृतियाँ जो उसने इकट्ठी की हैं, उन सब के आधार के ऊपर एक निर्णय लेने की कि हमें यहाँ जाना चाहिए, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सब प्रक्रियाएं बहुत स्वाभाविक रूप से वो चल करके आती हैं। वो बिल्कुल कॉमन मैन साइंस है, वहीं से शुरू हो जाता है वो बिल्कुल। अगर कोई छोटा बच्चा कुछ खेलने वेलने के काबिल हो जाता है, उसके बाद कुछ खिलौने से खेलता है और फिर उसका खिलौना वो खेलते खेलते कहीं रख देता है और थोड़ा घूम फिर करके फिर उसको दोबारा खिलौने की याद आती है, तो फिर वो कहाँ जाता है उसको ढूंढने के लिए, उसको उठाने के लिए कहाँ जाता है? वो जहाँ रखा था वहीं जाता है ना। जहाँ उसने आधे घंटे पहले, पौन घंटे पहले, 2 घंटे पहले रखा होगा, वो वहीं पर जाता है उसको फिर से दोबारा उस टॉय कार को लेने के लिए। वो वहीं पर क्यों जाता है? वो वहीं पर क्यों जाता है? दूसरे कमरे में जाके क्यों नहीं ढूंढता है? उसने देख देख करके उस 1-1.5 साल के अंदर में, अपने जीवन के प्रारंभिक 1-1.5 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में देख देख करके जो घटनाएं हो रही हैं उसको देख देख करके ये समझ लिया कि जो चीज जहां रखी जाती है वो वहीं बनी रहती है जब तक कि कोई
तो एक तो घटनाओं को देख करके उसमें से रूल्स निकालना कितनी बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम लोग सब यही तो करते हैं ना, वैज्ञानिक लोग, हम घटनाएं तो देखते हैं, हम अपने वो चांद सितारों पर होने वाली घटनाएं देखते हैं, वो क्या डॉपलर शिफ्ट हो गया, रेड शिफ्ट हो गया, उस घटना को देखते हैं, तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन 2.7 केल्विन का आ गया, फलाना हो गया, इनको देख देख करके हम उसके एनालिसिस करते हैं, उसमें से रूल्स निकालते हैं। तो ये प्रक्रिया तो वो बच्चा कर रहा है ना, 2 साल की उम्र के अंदर में, 1.5 साल की उम्र के अंदर में, 2.5 साल की उम्र के अंदर में, जो उसने चीज़ें देखी उसमें से उसने एक रूल निकाला हर एक चीज़ के लिए। ये नहीं कि ये 10 चीज़ें देखी हैं तो केवल 10 ही चीज़ों के लिए, हर एक वस्तु के लिए अगर वो कहीं पर वो है, विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में बनी ही रहेगी। और कितना विश्वास है उसको अपने ऊपर। अगर उसको वो टॉय कार वहाँ नहीं मिलती है तो वो पूछता है, मम्मा आपने लिया क्या, भैया आपने लिया क्या, दीदी आपने उठाया क्या। कितना विश्वास है उसको कि अगर वहां नहीं है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाए। तो बहुत सारा जो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हम कहते हैं, जो वैज्ञानिक चिंतन हम कहते हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि हर व्यक्ति में होना चाहिए नहीं है, वो बिल्कुल है, बाकायदा है। लेकिन समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब हम विद्यालयों में आते हैं और यहां हमें बताया जाता है कि जो जीवन से सीखा वो जीवन में इस्तेमाल करना, जो किताब से सीखा वो परीक्षा में इस्तेमाल करना, और ये दोनों अलग अलग। संगल साहब बैठे हैं, रीता जी बैठी हैं। एक बड़ी प्यारी कहानी है, इनको देख करके मुझे याद आई है। इनकी बिटिया जब छोटी थी और क्लास 1 में पढ़ती थी यहाँ कैंपस स्कूल में, तो उस समय में उसको एक लेसन पढ़ाया गया जिसका थीम था कि हु कैरीज व्हाट। तो जैसे पोस्टमैन कैरीज लेटर्स, तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें दे रखी थी कि हु कैरीज व्हाट, ऐसा थीम था। वो मैडम ने पढ़ा दिया इसको अपने क्लास के अंदर में, और उस पाठ के अंत में कुछ सवाल भी थे किताब के अंदर में, तो वो एक होमवर्क बता दिया कि इन सारे सवालों को आप बना करके आना कल। तो जब वो घर आई, बहुत जोश के अंदर में, नए नए स्कूल में गई थी, बड़ी सी बिल्डिंग थी, बहुत उसको उत्साह था कि हम बड़े स्कूल के अंदर में पढ़ रहे हैं। तो उसने आते ही वो अपना होमवर्क बनाना शुरू किया, और होमवर्क बनाते बनाते और उसके अंदर में एक प्रश्न आ गया, माई फादर कैरीज, और उसके बाद फिर लंबी लाइन खींची हुई थी जिसको फिल करना था। अब संगल साहब तो हमेशा लैपटॉप लिए घूमते रहते हैं इधर उधर, घर में भी आते हैं तो अपना अगले दिन का लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, रिसर्च पेपर बनाते हैं, क्या करते हैं। तो उसने उस प्रश्न के उत्तर में लिख दिया सीधा सीधा, लैपटॉप, माई फादर कैरीज लैपटॉप। तो बड़ी खुशी की बात है। यही वैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक तरीका सोचने का यही है, जो आप देखते हो उसमें से आप निकालो इंफॉर्मेशन, उसकी एनालिसिस करो, उसके आधार पर आगे की चिंता करो। तो ये है, तो बड़ा अच्छा। मगर दूसरे दिन जब वो स्कूल जाती है और टीचर के सामने में 30-35 बच्चे बैठे होते हैं और 30-35 मिनट का ही क्लास होता है और उनको आगे का पाठ भी पढ़ाना होता है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर में सब कर लिया कि किसने कितने सवाल ठीक बनाए और किसने कितने नहीं बनाए, और रेगुलर रहना चाहिए और वगैरह वगैरह, एक पेप टॉक दे करके। और फिर शायद बोला होगा कि जिन लोगों ने वो होमवर्क नहीं बनाया या नहीं बना पाए उनके लिए मैं सजेस्टेड आंसर्स लिख देती हूँ, और करके उसने वहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर लिखा उन्होंने, माई फादर कैरीज अम्ब्रेला। ठीक है, एक प्राइमरी स्कूल की टीचर का फादर लैपटॉप लेके थोड़ी घूमेगा, अम्ब्रेला लेके तो घूमेगा। तो उनका भी ठीक है, उन्होंने भी अपना वैज्ञानिक चिंतन ठीक किया। लेकिन समस्या क्या हो गई कि इस बच्ची ने, जिसको हम लोग बुलबुल कहते हैं, इस बच्ची ने अपने ज्योमेट्री बॉक्स को खोला। देखिए बहुत सीरियस बात है। अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को खोला, इरेजर निकाला, लैपटॉप को मिटाया और वहां पे अम्ब्रेला लिखा।
तो हम ट्रेनिंग देते हैं छुटपन से कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो किताब में लिखा होता है, जो परीक्षा में लिखना होता है, वो एक जिंदगी है, और हम जो जीते हैं वो दूसरी जिंदगी। आपको दूसरी घटना बताता हूं। हमारे यहाँ एक किसले नाम का विछोड़ा विद्यालय, प्री स्कूल, नर्सरी केजी। तो उनके जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, हमारे बीएसबी के मित्र, उनके ऑफिस में मैं कभी गया था, और चूंकि वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे तो उनकी दीवालों के ऊपर उस स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाई हुई ड्राइंग चिपकी हुई थी बहुत सारी। और उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि देखो देखो हमारे बच्चों ने कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई है। और नर्सरी केजी में मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है घर की ड्राइंग बनाना। 2 वर्टिकल लाइन representing the walls, 2 vertical lines representing the walls, और 2 slant lines representing the roof। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद जिसकी जितनी क्षमता है उसमें एक खिड़की बनाओगे, कोई सामने से सड़क निकालोगे, कोई पेड़ खड़ा करोगे, कहीं चांद चमकाओगे, कहीं नदी बहाओगे, वो सब एडॉन्स है, एडॉन्स है। बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है 2 वर्टिकल लाइन और 2 स्लैंट लाइन। ये जो स्लैंट लाइन है वो छत को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो वर्टिकल लाइन है वो दीवारों को रिप्रेजेंट करती है। मैंने उनसे पूछा, सर इस स्कूल में अमूमन आईआईटी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे जाते हैं। मैंने कहा सर पूरे आईआईटी के कैंपस में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी छत ऐसी हो। तो हम पहले दिन से क्या सिखा रहे हैं, जब स्कूल के अंदर आ जाओ तो घर की छत का मतलब ऐसा वाला होता है, जब स्कूल के बाहर चले जाओ, अपनी गलियों में चले जाओ, तो फिर छत का मतलब ऐसा वाला होता है। ये जो है ना वैज्ञानिक सोच हर कॉमन मैन के अंदर में होती है, लेकिन हम अपने सिस्टम को इस कदर हमने उसको रेजिमेंटेशन किया हुआ है कि हम उस वैज्ञानिक सोच को खुद ही कम कर दें। और इसीलिए ज़रूरत है कि विज्ञान को हम क्लासरूम से सीखें, लेकिन उसको कनेक्ट करें, अपने घर से कनेक्ट करें, अपनी सड़कों से कनेक्ट करें, अपने गांव से कनेक्ट करें, अपने बाजार से कनेक्ट करें, अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड से कनेक्ट करें। ये बहुत आवश्यक है ताकि ये गैप जो सिस्टम खड़ा कर रहा है उस गैप को हम लोग वापस ठीक करते रहें, उसकी मरम्मत करते रहें। तो जब मेरे को ये ऑफ़र हुआ कि इनॉग्रल लेक्चर आप करें और मैंने टाइटल देखा कॉमन मैन साइंस, तो मुझे लगा सबसे अच्छा कि अपने किचन में जो साइंस होता है उसके साथ हम जोड़ें। हाँ, बढ़ा दो। तो सबसे हाँ चल अगले पे चल, फ्रंट पेज क्या हुआ? वो है ना, वो मैं कर लूँ, है उसका सेंसर है, नहीं तो आप ही करो, कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ाओ तो भाई। एक स्लाइड तो बढ़ाओ। हाँ ओके। तो किचन जो है वो अपनी एक लाइव लेबोरेटरी है साइंस करने के लिए, और मैं चूंकि फिजिक्स जानता हूँ इसलिए फिजिक्स की चर्चा ज़्यादा होगी, लेकिन किचन जो अपना होता है वो बिल्कुल एक इतनी, ऐसे तो अपना पूरा जो ये यूनिवर्स है वो हमारी लेबोरेटरी है। सभी साइंटिस्ट के लिए जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी है वो ये है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले जब पढ़ना शुरू करते हैं, फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो मोशन की चर्चा करते हैं। और मोशन जो होते हैं वो ट्रांसलेशन के मोशन, रोटेशन के मोशन, रोलिंग के मोशन, ये सब हम लोग चर्चाएं करते हैं। तो अब ट्रांसलेशन का मोशन और रोटेशन का मोशन और इन सब के अगर डिस्टिंग्विश करना है, ट्रांसलेशन में अगर जाना है, तो देखो ट्रांसलेशन सिखाने के लिए एक पार्टिकल का तो कोई झंझट नहीं है, जब तक एक छोटा पार्टिकल है वो तो कहीं भी जाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं है। लेकिन कोई बड़ा ऑब्जेक्ट अगर है तो फिर हम ट्रांसलेशन में, रोटेशन में, रोलिंग में फ़र्क करते हैं। ट्रांसलेशन में हम कहते हैं ये पूरा का पूरा ऐसे चलना चाहिए, है ना, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, पूरा का पूरा, ये ट्रांसलेशन है। और रोटेशन के समय में एक कोई लाइन होगी और वो बाकी चीज़ें सर्कुलर पाथ में घूमेंगी, फिर रोलिंग आएगा।
तो अपने किचन के अंदर में कितना सुंदर ऑपरेटस है ट्रांसलेशन बताने के लिए। जब चटनी पीसेंगे तो अपने इस बट्टे को सिल के ऊपर हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कराएंगे। और कभी कभी वो कुछ छोटी चीज़ होती है, कम चीज़ होती है, उसको पीसना होता है तो हम लोग ऐसा भी मोशन करते हैं, ऐसा भी मोशन करते हैं। बादाम जैसे में घिसते हैं ना या उसको पीसते हैं तो ऐसा भी करते हैं। जब बड़ा होता है तो फिर ऐसा करते हैं। ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल है कि क्या है? ये कैसा मोशन है? हाँ जी, हाँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो अपने सिल बट्टे पर हूं, अलार्म बजाने में कोई रोल नहीं है। अब ये बताना जरा, ये कैसा मोशन है और ये कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन है ना। अमित भाई बताएंगे कि ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है। ओके, तो आप देखो सबके लिए किचन में जगह है सीखने की। इसमें भी आप देखोगे किसी भी समय पे ये अपने पैरेलल ही ट्रांसलेट हो रहा है। अभी ऐसे है, अभी ऐसे हुआ, अभी ऐसे हुआ, अभी ऐसे हुआ, अभी ऐसे हुआ, अभी ऐसे हुआ। ओके, रोटेशन होता है तो कोई एक लाइन होती है, उसके अबाउट सभी सर्कल्स में घूमते हैं। यहां ढूंढ के बताओ कोई लाइन है क्या जिसके अबाउट इस बट्टे के सभी पार्टिकल्स सर्कल में घूम रहे हो, केंद्र उसके ऊपर हो? ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है। तो बड़े बच्चों के लिए भी किचन जो है वो सीखने की जगह है। ओके, अच्छा ये बताना, बहुत कुछ सिखा सकते हैं हमें, हम तो रात हो जाएगी, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ये बताना, ये जो अपना बट्टा है और ये सिल है, इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं और फिर वापस लेकर के आते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ तक जा रहे हैं तो इस पर जो फोर्स लग रखा है, नेट फोर्स, वो कैसा है? वो आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ है? कैसा है? कैसा है? हाँ जी, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है ना। हम तो यहाँ से शुरू करते हैं, पहले अपना यहाँ रखते हैं, इसको जो भी धनिया वनिया है उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसको वैसे पीसते हुए रगड़ते हुए यहाँ ले जाके रुकते हैं ना। तो पहले भी रुका हुआ था और फिर चला और फिर से रुक गया। तो इसमें ये इस तरफ ऊपर की तरफ, यहाँ देखें तो ऊपर की तरफ ऐसे चला। तो इस पर जो नेट फोर्स लगना है वो ऊपर की तरफ लगना है कि नीचे की तरफ लगना है, किधर लगना है? तो ये सब कितने सारे लाइव सिचुएशंस है जहाँ से हम ये सब चीज़ें बारीकियाँ समझ सकते हैं। इनिशियली हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, जीरो से हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, और बाद में हम जो बढ़ी हुई वेलोसिटी है उसको जीरो कर रहे हैं। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नीचे है ना। और फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर है कि नीचे पूरे टाइम में? हाँ, वो नहीं बदल रहा है, वो उसकी दिशा नहीं बदल रही है, वो नीचे ही है, लेकिन नेट फोर्स की दिशा बदल रही है। एक बार ऊपर की तरफ है जब एक्सेलरेट हो रहा है, फिर डिसेलरेट हो रहा है नीचे की तरफ। मतलब मेरा हाथ जो फोर्स लगा रहा है इस बट्टे के ऊपर, वो ये सब कहानी कर रहा है। तो हम जो एक बहुत ही आइडियल लाइन वाइन डाल देते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर और फिर उसमें से सिखाने की कोशिश करते हैं, ये वो बड़ा प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट है, घरों में मिलता है, तो उससे आगे बढ़ना चाहिए अपने को। ऑलराइट, मिक्सी, ये मिक्सी है ना अपनी, इसके अंदर हम लोग दाल वाल पीसते हैं, चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, इस मिक्सी को जब चलाते हैं, खुलता है क्या? ये खुलता है। इसके अंदर अगर मैं कुछ डाल दूं, पानी वानी डाल दूं, दाल डाल दूं और कुछ कर दूं, और उसके बाद इसको चलाऊं, है ना। एक तो पानी क्यों डालना पड़ता है? दाल पीसनी है तो दाल डाल दूं, चला दूं, तो वो क्यों नहीं पिसती है? पानी डालने से क्यों पिसता है? तो कितने सारे सवाल यहाँ खड़े हो सकते हैं जिनमें से आप चीजें को सीख सकते हैं।
अगर उसका सीधा सीधा वो दाल को मैंने मूंग की दाल भिंगाई रात में और सवेरे उसको इसके अंदर में डाल दिया, चलाया, तो वो चलता ही नहीं है ना, वो चलता ही नहीं है, वो घुर वहीं पे करता रहेगा लेकिन चलेगा नहीं, वो गोल गोल नहीं घूमेगा, है ना। उसको जो दाल है, इसके जो ब्लेड्स हैं उसको चलने नहीं देती हैं, लेकिन उसी में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो फिर उनका चलना शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर विचार करो भाई, इसमें से कितनी सारी फिजिक्स सीखोगे। और अब अगर इसको हम चला दें, वेरी गुड वेरी गुड, इतना सा पानी डाला था मैंने, इतना सा पानी डाला था, वो भी छलक गया। दाल होनी जरूरी थी, इसमें दाल नहीं थी। लेकिन अगर आप ये करेंगे और झांक के देखेंगे उसके अंदर में, तो उसके अंदर जो पानी मिला हुआ दाल जो कुछ भी है, उसकी शक्ल देखना कैसी होती है, पैराबोलाइड टाइप की होती है। तो हम सीख सकते हैं ना वहां से बहुत कुछ। ऐसे तो हॉरिजॉन्टल होती है, और जब घुमाते हैं और मिक्सी चला देते हैं तो पैराबोलाइड हो जाती है। तो वो पैराबोलाइड ही क्यों होती है, दूसरी शक्ल क्यों नहीं होती है उसकी, और होती ही क्यों है पैराबोलाइड, सीधी ही क्यों नहीं है, ऐसे घूमती सर्किल में, सीधी ही क्यों नहीं घूमती। तो ये सब बहुत सारे लाइव सिचुएशंस हैं जो हम लोग रोज देख सकते हैं, देखते हैं और उसके ऊपर से काम करते हैं। और इसी में एक और चीज़ आपको कहेंगे, इसको जब एनालाइज करते हैं कि क्यों उसको पैराबोला होना चाहिए, उस तरह का सरफेस क्यों होना चाहिए, तो फिर आता है कि नहीं वो लैब के फ्रेम से काम करेंगे तो बड़ी मुश्किल है दिखाना, तो हम लोग उसके रोटेटिंग फ्रेम में जाते हैं। फिर कहते हैं स्यूडो फोर्स लगते हैं। तो किचन में कितना काम हो रहा है और कितने अवसर प्रदान कर रहा है किचन हमें, चीज़ों को समझने के लिए, करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अपने क्लासरूम के अंदर में, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अपनी किताबों के अंदर में, सूडो फोर्स वगैरह, वो है ना, एक सिचुएशन है यहाँ पे, उसको आप करो, उसको एनालिसिस करो इसकी। वो अब इसके अलावा सूडो फोर्स की जब चर्चा चलती है तो एक और चीज़ आती है, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। सुना है क्या, कुछ लोगों ने सुना है क्या कोरियोलिस फोर्स? हाँ, क्या होता है, देखा कभी नहीं है देखो आज कोशिश करते दिखाई दे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या, अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, चीजों को बाहर की तरफ लेके जाता है ना, बाहर की तरफ चीजों को लेके जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। लेकिन उसके अलावा ये बाहर की जब चलना शुरू कर देती है, वेलोसिटी गेन कर लेती है, तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी उसका डिफ्लेक्शन होने लगता है। तो वो जो फोर्स जिसको हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसने इसको ले गया उस रोटेटिंग फ्रेम में, उसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ओके, तो ये देखो, ये कढ़ाई का हमारा ढक्कन है, कढ़ाई के ऊपर ऐसे ढकते हैं ना, वो ढक्कन है, और इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो ये मेरा रोटेटिंग फ्रेम बन गया है। ठीक है, इसको कढ़ाई के ऊपर यहाँ पर एक उसका पकड़ने का भी था, उसको हटा दिया है हमने ताकि रखते समय में पंगे ना करे, और इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, आपके पास एक रोटेटिंग फ्रेम आ जाता है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा ये आटा बुरक रहा हूँ, ये मैं इसके ऊपर ये सूखा आटा बुरक रहा हूँ, आपको तो देखना मुश्किल है, मैं आऊँगा पीछे तो दिखाऊंगा आपको। इसके ऊपर पूरे पे मैंने आटा बुरक दिया है, और इस पर मैं ये एक सिक्का रखने जा रहा हूँ, सेंटर से थोड़ा हट करके। एक बार आपको दिखा दूँ फिर आऊँगा। क्या चीज़ है वो देख लो आप खाली, है ना। अपना कढ़ाई का ढक्कन है, उसके ऊपर क्या डाला हुआ है, दिख रहा है, और उसके ऊपर एक सिक्का कॉइन डाला हुआ है। ओके इसको मैं रोटेट करने वाला हूँ, अभी इसको मैं रोटेटिंग फ्रेम इसका बनाने वाला हूँ। राइट, यहाँ पे एक सिक्का पड़ा है और इधर में आटा पूरे में फैला हुआ है। ठीक है ना, समझ गए ना। अब देखो, इसको जब सिक्का पड़ा हुआ है उस समय आप सिक्के के आसपास का आटा देख लो, सिक्के के आसपास का जो आटा है वो आप देख लो कि कैसा है, क्या शक्ल है इस आटे की। राइट, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं,
अभी मैं इसको इस टेबल के ऊपर घुमाता हूँ, और अगर ईश्वर ने चाहा तो जो मैं जो चाहता हूँ वो हो जाएगा। ये सिक्का यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे रखा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसको इधर जाना चाहिए था, बाहर की तरफ, लेकिन बाहर की तरफ जाते जाते ये मुड़ गया। हाँ, ये कोरियोलिस फोर्स है। ये यहाँ पे सिक्का रखा था, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन गोल गोल दिख रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का केवल बात होती तो सीधा ऐसा जाता है वो। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। जरा वो आटा पकड़ाना, आटा पकड़ाना भाई। तो दिख जाएगा। देखो ये रास्ता पकड़ना चाहिए था, ये रास्ता पकड़ा है उसने। कोरियोलिस पर दिखा रहा हूं भाई, जो देख सकते हो देख लो, जिसकी किस्मत में लिख। यहां से मैंने शुरू जाना चाहिए था, सेंटर से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसने टर्न मार दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आगे जाना है और कोरियोलिस फोर्स के कारण टर्न मार। जो लोग नहीं देख पाए हो, शिक्षा सोपान के सोपान आश्रम में आ जाना, खूब बढ़िया से दिखाएंगे। हाँ अच्छा ठीक ठीक। बस एक चेंज करना। हाँ ठीक। अब देखो हम लोग पेंडुलम बहुत खेलते हैं स्कूलों में, है ना, और आज से नहीं, पता नहीं कि कब से खेल रहे हैं। मुझे लगता है जब से पेंडुलम गैलीलियो ने आविष्कार किया होगा तभी से खेल रहे हैं। हर एक 11वीं क्लास का बच्चा, उसको कहा जाता है कि वो पेंडुलम घुमाओ और टाइम पीरियड नापो, लेंथ नापो, और उसके बाद जी का मान निकालो। कितना होता है पता है ना? जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था 11th में, उसके पहले भी पता था ना? था ना पता? तो फिर क्यों किया? ओ हम लोग क्या वो पेंडुलम लेकर के इतने 50 साल पहले 60 साल पहले मैंने किया था, और अभी भी बच्चे लोग को वही करने को कहा जा रहा है। आप लो इधर खींचो छोड़ो, स्किल थोड़े से डेवलप होते हैं, स्किल थोड़े से डेवलप होते हैं, वो ठीक है। आप खींचो ये छोड़ोगे तो झटका नहीं आना चाहिए, छोड़ते समय में रेस्ट से छोड़ना है, वो थोड़े से स्किल डेवलप होते हैं। मगर साइंस क्या करना है, अच्छी तरह से पता है कि हमें कितना चाहिए, नहीं भी आए तो भी उसमें लिख देना 9.8। तो पेंडुलम खेलना है ना, तो हमारे किचन के अंदर में उसके लिए अच्छी सी सामग्री है, अच्छी सी सामग्री है। ये देखो, इससे क्या कसते हैं? अदरक कसते हैं। पता नहीं क्यों इसको कद्दूकस बोलते हैं। कद्दू तो कभी नहीं घिसते इसके अंदर में, लेकिन बोलते सब लोग कद्दूकस है। ओके, तो आप कहीं पे भी लटका दो, सब में लटकाने वाला होता ही होता है। फिर आप इसको ऑसिलेट करो और वो बढ़िया सा पेंडुलम आपको टाइम पीरियड नापो मजे से। मोबाइल, आजकल मोबाइल के अंदर, फोन के अंदर तो स्टॉपवॉच भी है, तो बहुत बढ़िया से नाप सकते हैं पूरा टाइम पीरियड। 10 ऑसिलेशन का, 20 ऑसिलेशन का आप निकालो, और निकालने के बाद क्या करो, इसका यूज करो। और इसका यूज करके जी मत निकालना, वो तो पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। निकाल सकते हैं ना? इसमें आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आई तो निकालना है, मास चाहिएगा। ये डी क्या होता है?
सेंटर ऑफ मास का सस्पेंशन से डिस्टेंस होता है, और टाइम पीरियड वो आपका नापा हुआ है। सेंटर ऑफ मास भी आप ढूंढ सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस दोनों उंगलियों को कहीं भी रख लो और कहीं पर भी रख लो और दोनों उंगलियों को नजदीक लाओ, जहां मिलेंगी वहीं पर सेंटर ऑफ मास होएगा, है ना? जहां मिलेंगी वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये जो ज्वाइंट हो रहा है ना इस जगह पर है, इस ये जो छेद है यहाँ पर है, और यहाँ पर सस्पेंशन है। तो वो प्लास्टिक स्केल उठाओ, यहाँ से यहाँ तक नाप लो, तो डी भी मिल गया। और मास नापने के लिए भी किचन में आजकल बहुत सारे किचन में ये यंत्र रहता है, हाँ, इसको आप ऑन कर लीजिए। क्या है ये? वेइंग बैलेंस है, हाँ, इसको आप ऑन कर लीजिए और इसके ऊपर जिसको आपको तौलना है उसको बस रख दीजिए। देखो अभी हमने कर दिया, 71 ग्राम है ये, 71.36 इसके डिस्प्ले पे आ रहा है, 70 ग्राम समझ लो इसको। तो आपको मास मालूम है, आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मालूम है, और आपको वो टाइम पीरियड आपने नाप ही लिया है, तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो जरा। कर सकते हैं ना? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं देने चाहिए स्कूल के अंदर में? वो एक आर्टिफिशियल कुछ शेप बना करके, फिगर बना के कह देते हैं कि, और खुद ही डेटा देते हैं उसकी, ये इतने सेंटीमीटर का वो डायमीटर है, इतना लंबाई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अगर डेटा मैं खुद जनरेट करूं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेटा मैं खुद जनरेट करूं, मैं ढूंढूं कहां सेंटर ऑफ मास है, मेरे पास जो वाला अदरक कस है, कद्दूकस नहीं कहता हूं मैं उसको, अदरक कस कहता हूं, मेरे पास जो वाला है उसी का मैं निकालूं, तो मेरी उसके साथ में कनेक्टिविटी बनती है ना। आप मुझको कोई बोलोगे ये रही रॉड, इसका निकालो, और एक मेरे घर के अंदर में मेरा अपना है, मेरे पिताजी का खरीदा हुआ है, तो उसके साथ तो अपना अफेक्शन है, इसका मैं निकालूं, इसकी लेंथ मैं नापूं, इसके कितने ग्राम है मैं पता करूं, मैं रखूं इसको तराजू के ऊपर, और उसके बाद मैं टाइम पीरियड नापूं और मैं निकालूं, तो उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होने वाला है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं। हाँ, नेक्स्ट देखना। ओके, तो ये हो गया हमारा रोटेशनल मोशन, हमने आपको बताया, आपको ट्रांसलेशनल मोशन बताया। अब आया रोलिंग। रोजाना घर में रोलिंग की जाती है, किचन के अंदर में की जाती है ना। ये जब रोटी बेल रहे होते हैं तो आप कैसा मोशन दे रहे होते हैं? रोलिंग का मोशन दे रहे होते हैं। और एक चक्कर जब लगता है, जो इसमें देखो कुछ कुछ निशान बने हुए हैं, ये निशान दिखता है क्या यहाँ छोटा सा काला काला, या नहीं है तो आप बना लो, एक निशान लगा दो वहां पे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने चक्कर घुमाए। रोलिंग में जब आप उसको बढ़ाएंगे, अभी अगर ये टॉप पे है तो बाद में ये उसकी तरफ, चकले की तरफ जाएगा, और थोड़ी देर के बाद जब ये आधा घूम जाएगा तो चकले से सट जाएगा, और फिर पूरा घूम जाएगा तो फिर से ऊपर आ जाएगा। तो मैं नाप सकता हूं। और एक चक्कर अगर घुमाते हैं, ये अभी टॉप पर है इस समय, और मैंने इसको ऐसे बेला और फिर से ये टॉप पर आ गया है, तो कितना चक्कर मैंने घुमा दिया? एक चक्कर मैंने घुमा दिया। और फिर और भी इसको चकले के आखिरी तक घुमाता हूं मैं, तो ये संजोग की बात हो सकती है, लेकिन आज मैं जब कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था अपनी, तो मैंने पाया कि ये पूरे चकले के किनारे तक आने में ये ठीक नीचे जाके इससे सट जाता है। तो कितने चक्कर चलाइए? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आप ये रेशियो बताओ, चकले का डायमीटर और बेलन का डायमीटर, इसका रेशियो चाहिए। इसका जो ये डायमीटर है और चकले का जो ये डायमीटर है, रेशियो चाहिए। तो मेरे पास मिल गया ना रास्ता, 1.5 चक्कर। तो इसका अगर R1 है, एक चक्कर में 2 पाई R1, तो फिर वो चला कितना? 3 पाई R1। तो ये 3 पाई R1 है, ये 2, इसका अगर रेडियस R2 है तो ये 2 R2 है। ये भी नप सकता है, ये तो आसानी से नप सकता है, और ये ऐसे नप सकता है। तो हम इस तरह के सवाल हम क्यों ना क्रिएट करें अपने स्कूलों के अंदर में? जब हम होमवर्क देते हैं तो हम क्यों नहीं बोलें कि अपने किचन में चले जाना, वहां का चकला उठा लेना, वहां का बेलन उठा लेना, नापा जोखी करना, और उसके बाद ये कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट बताना। ऐसा होमवर्क दे तो कैसा रहे?
रहे ना, तो वो कॉमन मैन के साथ में साइंस की जो डिस्कनेक्ट हम लोग करवा रहे हैं उसकी जगह पे वो कनेक्ट होगा ना। तो ये बहुत बहुत सारी ढेरों संभावनाएं हैं। आगे बढ़िए। आपको ये पता है जिस समय आप इसको रोलिंग कराते हैं, जिस समय इसको आप रोलिंग कराते हैं, ऐसे रोलिंग कराते हैं, तो इसके सेंटर की जो वेलोसिटी है और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसका रेशियो पता है आपको? हाँ, 2:1 होता है ना। अब देखो हम कैसे आपको दिखाते हैं कि ये 2:1 है। हमने ये बेलन लिया, बेलन केवल रोटी बनाने के लिए नहीं होता, फिजिक्स सीखने के लिए भी होता है। और इस बेलन को मैंने यहां पे रखा, हाथ के इस जगह पे रखा, ओके, ऐसा। और अब जो दूसरा हाथ है उसकी उंगलियों का जो सिरा है, ये है ना, ये जो एज है इसका, ये इसको ध्यान देना। इससे मैंने इसको दबा रखा है और आगे धकेलूंगा मैं, इस बेलन को मैं आगे धकेलूंगा। देखो धकेल रहा हूं ना, आगे धकेल रहा हूं ना। ये हाथ तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो सीधा ही खड़ा है। यही जो उंगलियां मेरी हैं और ये वाला जो दाहिना हाथ है, उसी से मैं इसको ऐसे ऐसे धकेल रहा हूं। और धकेलते धकेलते मैं क्या कहां तक ले जाऊंगा? ये एज जो यहां सटा हुआ है उसको मैं यहां सटाऊंगा। देखना, यहां से शुरू किया हमने, और इसको हम यहाँ, ये देखो ये उंगलियों से सट गया, बाएं हाथ की उंगलियों से सट गया है। पहले ये बाएं हाथ के ये जो इसको क्या बोलते हैं, पहुंचा बोलते हैं लोग, ये इससे सटा हुआ था, इससे यहाँ सटा हुआ था ऐसे, और घूम करके जब ये आया तो अब ये उंगलियों से सट गया, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक में बेलन का जो सेंटर है वो कितना चला? एक हाथ चला ना। अब इन उंगलियों को देखना, ये कितना चला? ये यहां थी, यहां से शुरू किया था और कहां पहुंच गई देखना। एक हाथ ही है, दो हाथ चला ना। तो सेंटर जितना चलता है, टॉप मोस्ट पॉइंट उसका डबल चलता है, तो उसकी वेलोसिटी, ओके। तो बेलन में गुण बहुत है, सदा राखिए साथ। चलो नेक्स्ट, ओके। तो ये कर, अच्छा हाँ, अभी हम लोग एक परीक्षा करते हैं, हम लोग करते हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेज में जो बीएससी या एमएससी कर रहे होते हैं उनके लिए, जिसको हम कहते हैं नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। तो उसमें जो परीक्षा का एक चरण है, उसमें हम स्टूडेंट्स को लिख करके एक्सपेरिमेंट भेजते हैं कि ये करना है, लेकिन उसको करने के लिए उनको कहीं लैब में नहीं जाना है, कहीं दुकान पर जाकर के कुछ खरीदना नहीं है, जो घर में सामान है उसी से करना है। और इसी का कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन होता है, और उनको फिर प्राइजेज और स्कॉलरशिप्स और कई सारी चीज़ें उनको मुहैया कराते हैं। तो उसमें हमने शायद 2021 में ये जो हमने एक्सपेरिमेंट दिए थे उसमें से एक ये था कि आप एक इंक्लाइंड प्लेन बना लो, ओके, और इंक्लाइंड प्लेन बना करके इसको उस पर लुढ़काओ। हाँ, ये जो है, जैसे ये टेबल है, ये अगर उठती है यहाँ से, पता नहीं मुझे, हाँ ओके, उठाना थोड़ा कठिन है, हाँ उठेगी। चलो इधर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी इंक्लाइन करा सकते हैं। तो आप कुछ उसको ऊंचा करके, हाँ ऐसा करके, नीचे में किताब लगा करके घर में काम करना है, क्योंकि साइंस को जोड़ना है, अपनी ज़िंदगी से जोड़ना है, उसको हटने नहीं देना है। तो यहाँ पे नीचे किताब लगा के एक इंक्लाइन प्लेन बना लो, रख दो। और उसके बाद क्या करो, इस बेलन को यहाँ से छोड़ दो, लुढ़कने दो, और रोल करता हुआ यहाँ पहुँचेगा। तो आपको क्या नापना है? एंगल ऑफ इंक्लाइन नापना है। आप समझो कैसे नापोगे। और आपको बताऊँ, ये इंक्लाइन आप 4 डिग्री से ज़्यादा नहीं कर सकोगे, क्योंकि इतनी लेंथ के अंदर में अगर 4 डिग्री का इंक्लाइन हो जाएगा तो इतना जल्दी पहुंचेगा कि स्टॉपवॉच से नापना 4 डिग्री में भी कठिन होगा। 4 से ज़्यादा तो करना ही नहीं। तो 1 डिग्री का इंक्लाइन करना है, 2 डिग्री का इंक्लाइन करना है, 3 डिग्री का इंक्लाइन करना है, और उसके बाद इसका टाइम नापना है। वहाँ से जी निकालना है तो, हाँ, अगर जी निकालना ही है तो पेंडुलम से क्यों निकालना है, यहाँ से निकालो। कुछ नए फार्मूला भी इस्तेमाल करोगे, कुछ उसको भी सीखोगे।
ये हमने दिया और हजार बच्चे हमने सेलेक्ट किए थे उस राउंड के लिए। 1000 घरों के अंदर में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, 1000 घरों के अंदर। तो बेलन जो है वो बहुत काम की चीज है। चलो डर के भी रहना उससे। फिर हम ऐसे सवाल भी दे सकते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इसका निकालो भाई, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 3 हिस्से करोगे, इसको सिलेंडर मानोगे, इसको कुछ और मानोगे, छोटा सिलेंडर मानोगे, इसको छोटा सिलेंडर मानोगे, इसका रेडियस नापोगे, उसका रेडियस नापोगे, फिर इसका वो क्या जो भी लगाना है हाफ mr² करोगे, इसका करोगे, इसका करोगे, अप्रॉक्सीमेशंस को फिर सुधारोगे, कहोगे कि नहीं ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो अब उसको हायर ऑर्डर इटरेशंस करेंगे उसके अंदर में। बहुत सारा काम कर सकते हैं ना बेलन से, हाँ ऐसा ऐसा करके पतंग भी। चलो नेक्स्ट, कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको दिखा दिया। बुओयंसी, बुओयंसी तो बड़ी अच्छी चीज होती है। बाल्टी वाल्टी है क्या यहाँ पे? नहीं। हाँ, बुओयंसी का सबसे अच्छा फीलिंग तो आपको बाल्टी में ही आता है। अगर बाल्टी है आपके पास में और लोटा है संघल साहब, लोटा कहता हूं तो राजीव संघल जी की याद आती है। वो कहते हैं कि ये इतना जबरदस्त इनोवेशन है लोटा। लोटा जो है वो कहते हैं कि बहुत जबरदस्त इनोवेशन है, कितना सुंदर शेप है उसका। और आप देखो उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम अटेगा। दूसरे आप गिलास विलास लोगे, जार बनाओगे, उसकी अपेक्षा उतने ही मटेरियल में, जितने मटेरियल से आपने वो सिलेंडर बनाया है, उतने ही मटेरियल से अगर आप लोटा बनाओगे तो लोटे में ज़्यादा सामान अटेगा, सिलेंडर में कम अटेगा, है ना। सरफेस टेंशन के चैप्टर में पढ़ते नहीं है सब, कि सरफेस को मिनिमाइज करने के लिए स्फेरिकल ड्रॉप्स हो जाते हैं। सरफेस को मिनिमाइज करने के लिए स्फेरिकल ड्रॉप्स हो जाते हैं। सरफेस को मिनिमाइज करना यानी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, तो स्फेरिकल शेप होता है लोटे का, क्लोज टू स्फीयर। ये ऐसा वाला नहीं होता है, ये ऐसा वाला नहीं होता है। तो बचत है, कम ही मटेरियल खर्च हुआ, ज़्यादा सामान हट गया। और उसके बाद पकड़ने के लिए आपका मग वग होता है, तो हैंडल लगा होता है, हैंडल लगा होता है, उसमें पकड़ते हैं ऐसे ऐसे। हाँ ओके, हाँ राइट, ऐसे पकड़ते हैं। अब ऐसे अगर पकड़ेंगे ये भरा होगा, तो आप सोचो हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, उसमें लगाना पड़ेगा ना। लेकिन लोटे को हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, बहुत कम बल लगाना पड़ता है। इसको अगर मैं यूं पकड़ूं, इसको अगर मैं यूं पकड़ूं, तो देखो यहां से भी बल लगाना पड़ रहा है ऊपर, और यहां से भी लगाना पड़ रहा है, अंगूठे से लगाना पड़ रहा है नीचे। केवल यहां से करके टिका सकते हो क्या? नहीं ना। तो मुझे बल तो लगाना था ऊपर, क्योंकि धरती नीचे खींच रही थी, उसी को तो काउंटर करना है ना। तो हमें बल तो लगाना था ऊपर, लेकिन कितना इनएफिशिएंट वे है। पहले नीचे लगाओ, फिर उससे ज्यादा ऊपर लगाओ, ताकि रिजल्टेंट जो है वो ग्रेविटी वाले फोर्स के बराबर हो जाए और उसको काउंटर करे। इनएफिशिएंट तरीका है ना। अगर मैं इसको सीधा ऐसा पकड़ कर उठाता हूं तो कोई झंझट नहीं है, जितना चाहिए उतना ही बल लगाता हूं। लोटे को जब पकड़ के उठाते हैं तो जितना बल चाहिए उतना ही लगाते हो। लेकिन वो मग वाला ऐसा सिस्टम जो है, ऐसा वाला जब उठाते हैं, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टोटल फोर्स जो हमें, टोटल नॉट रिजल्टेंट बल्कि इस उंगली से उस उंगली से मिला के जो टोटल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ता है, वो ज़्यादा ही ज़्यादा होता है। बुओयंसी, लोटे को पानी भर करके हम उठाएंगे और बाल्टी के अंदर में उसको रखेंगे, पानी के अंदर में लोटे को, तो साफ ही नजर आएगा, साफ ही नजर आएगा कि जब पानी के अंदर है तो बहुत आराम से उठ रहा है, और जब पानी से जैसे ही बाहर निकाला वो भारी लगने लगता है। तो कॉमन है, एग्जाम्पल्स किताबों में खूब दिए जाते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल बहुत करते नहीं हैं। तो बुओयंसी हम लोग, ये बाल्टी लोटा पानी किचन में तो रहता है ना, किचन में तो रहता ही है, तो वहां से लेकर के आते हैं। और चलो, बॉइलिंग पोटैटोज टू मेक आलू पराठा। हाँ, आलू हमारे पास रखे हुए हैं थोड़े से, और प्रेशर कुकर भी रखा हुआ है, प्रेशर कुकर भी रखा हुआ है। और ये प्रेशर कुकर थोड़ा स्टाइलिश है। मेरे घर में जो है वो सीधा सीधा सिलिंड्रिकल है, ये थोड़ा सा यहाँ स्टाइलिश है। लेकिन जब आप
इसको रखते हो उसके अंदर में और उसको उबालते हो ना, आलू पराठा बनाने के पहले क्या करते हैं पता है? पता रखना, अगर नहीं है तो काम आएगा। तो आलू को हम लोग पहले ऐसे डालते हैं और डाल करके उसमें पानी डालते हैं। तो अगर हमने पहले पानी डाल लिया और पहले पानी डाल करके उसकी हाइट नाप ली स्केल से, फिर उसमें आलू डाल दिए जितने भी डालने 8-10, और फिर हाइट अब कितनी हो गई है पानी की वो नाप ली हमने, तो कितना वॉल्यूम टोटल आया वो तो निकाल सकते ना, निकाल सकते ना। और वहां से फिर हम एवरेज मेरा आलू कितना बड़ा है, कितना आयतन है, इस दिशा में सोच सकते हैं। तो बहुत सारे फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी हैं, मैं उस पर अभी फोकस कर नहीं रहा हूँ, जो है वो उसके ज्वलंत उदाहरण और रेडीमेड प्रॉब्लम्स आपके किचन के अंदर में मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट, कढ़ाई में पकौड़े बनाते हैं। हाँ? तो जब पकौड़े बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक परात में या किसी चीज़ के अंदर में वो बेसन और वो सब करके उसमें जो भी वो जीरा वीरा डालना रहता है, जो प्याज व्याज के छोटे घिस करके डालते हैं, उसका उसको खूब फेंटते हैं ना। तो वो भी अपने आप में एक आगे की स्लाइड में है। वो फेंटने से क्या होता है, ज़्यादा फेंटने से स्वादिष्ट क्यों हो जाता है? हाँ जी, एयर फिल हो जाता है। ओके। तो बहुत सारा फेंटते, और उसके बाद उसका ऐसे लंप बना करके पकोड़ा बनाने के लिए हम लोग कढ़ाई में, जिस समय कढ़ाई में डालते हैं उस समय कढ़ाई के तेल में वो लंप क्या करता है, नीचे चला जाता है। वो एयर वेयर सब मिला चुके आप, उसके बावजूद भी वो नीचे चला जाता है, डूब जाता है उसके अंदर में, और जरा सा रुक जाइए फिर से ऊपर आ जाता है, जरा सा रुक जाइए फिर से ऊपर आ जाता है, जबकि उसमें तेल घुस रहा है, जबकि उसमें तेल घुस रहा है, उसके पोर्स के अंदर में तेल घुस रहा है। तो ये है ना कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी, बॉयंसी के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में कुछ है ना, इसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी है ना यहाँ पे, कि ये क्या हुआ भाई, गरम करने से, तेल के अंदर में गरम करने से वो फ्लोट करने लग गया है, तो हुआ क्या है। तो आपका ढेर सारा उसमें से, जब इसको कोई इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ले करके आएंगे कि क्या क्या हो रहा है, वो जो बेसन के पार्टिकल्स हैं उनका क्या हो रहा है, हीट हो करके कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं क्या, ऑयल के साथ में क्या हो रहा है। बट इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और खास करके ये बॉयंसी के विषय में इस पर बात करने की है जगह है। हाँ जी, अच्छा, तो ये हो गया। नेक्स्ट सर, हाँ एक पीछे जाना। बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि जो हम लोग नैनो साइंस वगैरह करते हैं तो उसके अंदर में वो क्वांटम कॉन्फाइनमेंट वगैरह की बात तो होती है, लेकिन एक बड़ा क्लासिकल पिक्चर भी है कि जब आप छोटे पार्टिकल्स में जाते हो तो सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं और सरफेस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इंटीरियर में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो रेशियो है वो रेशियो बदलता है। जैसे जैसे छोटा पार्टिकल करते जाते हैं, सरफेस के ऊपर, सरफेस पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलते जाते हैं एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। वो रेशियो जो बढ़ता जाता है, पार्टिकल छोटा करते जाओ, सरफेस का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता चलता है। और सारे मेरे जितने रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। इंटीरियर पर कैसे होंगे, पहले तो सरफेस से ही तो अंदर घुसेगा ना जो कुछ भी घुस रहा है। तो सारे हमारे जितने रिएक्शंस होते हैं सब सरफेस पर होते हैं, और सरफेस का महत्व जो बढ़ता है, जितना हम ज़्यादा उसको महीन करते हैं। तो दीज थिंग्स हैव अ रोल इन द फेनोमेना जो हम लोग देख रहे हैं। हाँ नेक्स्ट, ये हमने बैगन पर शुरू किया था, लेकिन जब हमने बैगन उठाया जो मेरे घर में था, भरता बनाने वाला बैगन, दूर से देखा तो लगा कि बहुत अच्छा है, गोल गोल है, लेकिन जब उठाया तो देखा गोल गोल है नहीं, वो बड़ा इलिप्टिकल टाइप का ही था। तो फिर हमने चेंज कर दिया। इसको हम अर्थ का मॉडल बना सकते हैं क्या, अर्थ का मॉडल बना सकते हैं क्या। इसका एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ भी है, तो इसको हम नॉर्थ पोल बता दें तो आसानी रहेगी। हाँ, ग्लोब, ग्लोब। तो ग्लोब, अगर स्कूलों में ग्लोब होता है, वहाँ से पढ़ाते हैं, तो ये मेरा एक रेडीमेड ग्लोब हमेशा आता जाता रहता है ना घर में। अब बताओ, इस ग्लोब पर
इस ग्लोब पर अगर मैं यहां पे हूं, इस जगह पे, इस जगह पर हूं, बोलो ईस्ट किधर है? यहां पर हूं मैं, ईस्ट किधर है? हाँ हाँ, और नॉर्थ किधर है? ऊपर मतलब, ऊपर मतलब यहां पर हूं मैं, नॉर्थ किधर है? यहां हूं मैं, यहां हूं मैं, नॉर्थ किधर है? ऊपर तो एक ही होता है ना, ऊपर तो एक ही होता है। ओके, तो यू कैन चैलेंज द इमेजिनेशंस। जो हम जान रहे हैं उसको कर सकते हैं हम। ब्लैक बोर्ड पे जब ऐसा गोल बना देते हैं कि ये रहा अर्थ, अब इस पे एक आदमी को खड़ा करना है, करो, तो सब लोग बिल्कुल सबसे ऊपर टॉप वाले पॉइंट पे ही आदमी को खड़ा करते हैं। कोई साइड में खड़ा नहीं करता है, कोई यहाँ से खड़ा नहीं करता है, सब लोग ऊपर ही करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप लेके जा सकते हो। क्यों, क्या है ना, इसको देख करके जो अपनापन आता है स्टूडेंट के मन में, या जो भी देखता है उसके मन में, ग्लोब को देख करके नहीं आता है। जो आपका ग्लोब, सुंदर सा ग्लोब बना हुआ है, बढ़िया, वो फ्रेम के अंदर में फिट है और बढ़िया गोल गोल घूमता है, तरह तरह की उसमें लाइनें पड़ी हैं, लेकिन उसको देख करके स्टूडेंट अपने को उससे कनेक्ट नहीं करता है। लेकिन आप ये लेकर के जाओगे ग्लोब की जगह पे, करेगा, क्योंकि वो तो रोज का इसका देखा हुआ है ना, किचन के अंदर में आता जाता रहता है, ये करते हैं। तो जो पद्धति है आपकी पाणिनि पद्धति, मुझे लगता है हम लोग उसी लाइन पे काम कर रहे हैं, उनकी जो अपनी नैसर्गिक, अपनी जो खुद की जो फ्रीक्वेंसी है, उसी की फ्रीक्वेंसी से हम उन्हीं के जीवन से उसको ट्रेन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, चिमटा। हमारा जो चिमटा है वो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क भी है। ऐसे ही होते हैं ना ट्यूनिंग फॉर्क की शक्ल। ट्यूनिंग फॉर्क की जो शक्ल होती है उसमें दो वो निकले रहते हैं, दो उसके प्रॉन्ग्स निकले रहते हैं ऐसे, और पीछे में पकड़ने का बना होता है। तो अपना जो चिमटा है वो वैसा ही है। इसको अगर आप ऐसे करके छोड़ेंगे तो एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करता है, और हर चिमटे की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये भी एक टास्क दे सकते हैं ना बच्चे लोग को, कि भाई अपने घर के चिमटे की फ्रीक्वेंसी बताओ, 1 सेकंड में कितने बार ऊपर नीचे करता है। और आजकल तो बहुत आसान है, आप इसका वीडियो ले लो फ़ोन से, और एक फ्रेम आप जान रहे हो कितना है, 1/30 सेकेंड है या कुछ है, तो आप बाकायदा काउंट कर सकते हो उसको, फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ाओ, और देखोगे कब ये उसने जाकर के ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, किस फ्रेम पे। तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हो इसके अंदर में। तो साधारणतः 14, 15 हर्ट्ज, 16 हर्ट्ज टाइप की फ्रीक्वेंसी अलग अलग चिमटों की अलग अलग आती है। अब ये जो चिमटा अपना ट्यूनिंग फॉर्क है, इससे अगर आप देखेंगे, अगर दिखे तो यहाँ देखो तो कुछ आपकी ये जो धागा है, इस धागे पर कहीं कुछ एंटीनोड बनते हुए दिखते हैं क्या आपको? दिखा ना यहाँ पे? ये देखो यहाँ पे एंटीनोड दिख रहा है, यहाँ एंटीनोड दिख रहा है। 3 लूप्स वाइब्रेशंस हो रहा है, एक यहाँ एंटीनोड है, एक नीचे एंटीनोड है। मैं इसका थोड़ा टेंशन बढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा सा टेंशन बढ़ाता हूँ। अब देखो ये फंडामेंटल की तरफ जा रहा है, दिख रहा है क्या? तो टेंशन बढ़ाने से कैसे वेलोसिटी वेव की बढ़ती है, उससे फ्रीक्वेंसी का क्या संबंध है, V/4L, V/2L, और उसके अनुसार कितने लूप उतनी ही लेंथ के अंदर में बन रहे हैं। मेरी लेबोरेटरी के अंदर में, मेरे किचन के अंदर में सब कुछ है, ट्यूनिंग फॉर्क भी है, और हम उससे स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं, और नोड और एंटी नोड और ये सब चीजें पढ़ा सकते हैं हम। हाँ, अगला, इंडक्शन कुकर वर्सेस LPG। अब मैं चूल्हा जलाऊंगा।
कहाँ चला गया? पहले इंडक्शन कुकर, पावर है ना? ओके, ये खाली बर्तन है और इस खाली बर्तन में मैंने यहाँ रखा है, स्विच ऑन भी कर दिया है और पानी डाल रहा हूँ। अभी ये पानी गर्म हो जाएगा, इसको खौलने देना है मुझे, तब तक और कुछ बातें करें। एक अखबार है क्या, पेपर है क्या? ये देखो, ये जो है इलेक्ट्रिक केटल है और इस इलेक्ट्रिक केटल में हम, इस पे थोड़ा पानी पड़ा हुआ भी है। थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको हटा देते। अब देखो, ये इसकी बत्ती जलेगी, जली क्या? कौन सा वाला है इसका? ये है, तीसरा यही होगा। नहीं, हाँ, बस, हाँ, नहीं, आपने वापस बंद कर दिया। रुक जाइए, नहीं, हाँ, बस, ठीक है। देखो, मैंने इसको भी ऑन कर दिया है। यहाँ पे भाप निकल रही है, आगे वाले शायद देख सकते हैं। इसकी आवाज सुनना, इसकी आवाज है या इसकी नहीं है? ये आवाज क्यों हो रही है? अंदर क्या हो रहा है? पानी खोल रहा है ना, खोल रहा है ना? पानी नहीं खोल रहा है। ओके, पानी नहीं खोल रहा है, हल्का गर्म हुआ है, पानी हल्का गर्म हुआ है। आवाज कितनी तेज हो रही थी? फिर से करते हैं, देखो, ठंडा पानी से शुरू करते हैं। चल पूरे, ये ऑलमोस्ट खोलने लगा है। ये देख रहे हैं कितनी सारी भाप निकल रही है? आप देखिए आकर के, खोल रहा है क्या? खोल रहा है ना, खोल रहा है ना? ओके, अब तो नहीं बोल रहा है। इतनी देर हो गई इसको ऑन किए हुए, उस समय तो बोल रहा था, अब बोलना शुरू किया इतनी देर के बाद, थोड़ा थोड़ा। तो आप देखो, ये स्टील का है। लोग बोलते हैं कि वो ये प्लास्टिक वाला लगाया जाता है ताकि हीट कंडक्ट होकर के गर्म ना लगे हाथ में। हैंडल में प्लास्टिक लगाए जाते हैं, हीट इंसुलेटर होता है। और हम तो इसको आराम से यहाँ स्टील से पकड़ करके उठा रखे हैं, पूरा खोल रहा है। फिर ये जो है, इस पर भी हम इसको छू पा रहे हैं, हालांकि गर्म लग रहा है, लेकिन देखो छू पा रहे हैं। तबला पीट सकते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर अखबार रख करके, और तब इसको रख करके और हम फिर से खोला सकते हैं, और अखबार को कुछ नहीं होने वाला है। देखो, जितना आवाज पहले कर रहा था ना, अब उतनी आवाज इसने की है, लेकिन अब मैं हाथ पे पानी नहीं डालने वाला हूं। अब ये वाकई में बहुत गर्म है। हाँ, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। तो पता करने का है, ये क्या हुआ था? पहली बार में तुरंत आवाज शुरू हो गई थी, गर्म होने के पहले ही थोड़ा सा गर्म हुआ, आवाज शुरू हो गई थी, और हम आराम से हाथ पे पानी डाल रहे थे। अगली बार उसी बर्तन के अंदर में
उसी बर्तन के अंदर में हमने फिर से पानी डाल करके इसको ऑन किया तो बहुत देर के बाद आवाज आनी शुरू हुई, और जब आवाज आई तो इतना गर्म हो चुका था कि हम अपने हाथ पे डालने की हिम्मत नहीं कर रहे। तो सीखने की चीज है ना सीखने की चीज। किताब के एक्सरसाइजेस में मिलेगी क्या, लेकिन घर में मिलेगी, किचन में मिलेगी। तो आर्टिफिशियल होमवर्क के बजाय इस तरह का नेचुरल होमवर्क अगर हम करें कि ये क्या पहली बार क्या हुआ था, दूसरी बार क्या हुआ था, इट्स ए काइंड ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। हम आंसर हमें भी पता नहीं है, या अगर पता है तो हम प्रिटेंड करते हैं कि हमें पता नहीं है। स्टूडेंट शुड एक्सप्लोर, मालूम करो, लेके आओ, अलग अलग हाइपोथेसिस से लेके आओ। देखो कितनी देर से ये पानी खोल रहा है, लेकिन हमारा जो अखबार है वो एकदम जोग आती है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या होता है इंडक्शन कुकर में, क्या होता है, यहां पे ऐसे इसको जला के अखबार रख करके मैं रख सकता हूं क्या? नहीं ना। तो ये इसका हो गया। अब इसका पानी हमें वापस निकालना है। कहाँ निकालूं? निकल जाएगा? हाँ ठीक, ठंडा पानी डालो। हाँ ठीक। हाँ, अब मैं इसको चलाऊंगा, रखूंगा एलपीजी पे। इसको रखूंगा मैं लाइटर इस पे, और इस पे इसको खोलाऊंगा। ओके, इसको बंद कर दे अभी। हाँ, थर्ड यही होना चाहिए। नहीं, हाँ ठीक है। पानी खोलने में बहुत देर है अभी, और मैं पकड़ नहीं सकता हूं यहां से। छू के देख लो भाई कोई। सावधानी से, हाथ जलने का पूरा अंदेशा है। स्टैट्यूटरी वार्निंग। उठाओ। इतनी सी देर के अंदर में पानी जो है वो बहुत गर्म नहीं हुआ है। देखो पानी के अंदर में हाथ डाल रहा हूं, ये देखो, स्टील पे हाथ नहीं डाल सकता हूं, पानी में हाथ डाल रहा हूं। और उस समय पानी में नहीं डाल सकता था, खोल रहा था, और स्टील से मैं पकड़ के उठा रहा था। राइट? कितनी सारी चीजें सीखने की है। यहां क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है। यहां स्टील गर्म हो रहा है, पानी गर्म नहीं हो रहा है। वहां पे पानी गर्म हो रहा है, स्टील गर्म नहीं हो रहा है। ओके, तो अब यहां से आगे बढ़ो, तो फिर जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। हाँ? इसका टोटल मैकेनिज्म जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पर आधारित है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहिए उनको, स्टील में चाहिए। कॉपर का बर्तन रखते हैं तो काम नहीं होता इसके ऊपर, एल्यूमिनियम का बर्तन रखते हैं तो काम नहीं होता, कंडक्टर है। अक्सर लोग कहते हैं एडी करेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो एडी करेंट्स तो कॉपर में भी होना चाहिए था ना, और अच्छा होना चाहिए था कॉपर में। लेकिन नहीं, कॉपर नहीं चाहिए अपने को, एल्यूमिनियम नहीं चाहिए अपने को, स्टील ही चाहिए। तो वहां से फिर आप कितना सारा चीजें सीखोगे, हिस्ट्री से सीखोगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर करोगे, कुछ मेजरमेंट करोगे, तो बहुत सारा हायर स्टडीज वाली जो चीजें हैं वो भी इसके अंदर से निकल करके आ सकती है। हाँ, इसको बंद कर गैस। हाँ, गैस बंद कर देते हैं। अब तो ये उठ ही नहीं सकता है। अब इसकी जरूरत है, ये जो हैंडल के ऊपर जो हीट इंसुलेटिंग लगा है ना, यहाँ जरूरत है, वहां जरूरत नहीं थी। ओके, चलो ऑलराइट। तो ये एडी करंट और मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, इसका जो मैकेनिज्म है वो हिस्टेरिसिस पर आधारित है। इसमें जो स्टील में जो फेरोमैग्नेटिक उसका कैरेक्टर है, उसके कारण से इसका वो सैचुरेशन पे जाना, फिर पलट गया तो वापस सैचुरेशन से नीचे आना, फिर उस पर जाना, तो हर एक लूप के अंदर में उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होना, बहुत सारी उसमें से मटेरियल साइंस और फिजिक्स जो है वो की जा सकती है। हाँ चलो, और कुछ? प्रेशर कुकर। हाँ, प्रेशर कुकर की बात कर सकते हैं हम लोग। प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो जल्दी क्यों बनता है? प्रेशर कुकर से जब खाना बनाते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो हम लोगों ने कई साल पहले
बहुत साल पहले, 10 साल पहले। संजय धांडे जी यहाँ डायरेक्टर थे उस समय में। हमने क्या किया था कि एक प्रेशर कुकर लेकर के उसका जो ढक्कन है, प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है, उसमें यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व के लिए ये बना रहता है, होता है ना, तो हमने इसको यहाँ से इसको हटा दिया था, निकाल दिया था, और निकाल के उसकी जगह पे थर्मोकपल घुसा दिया था। ओके, और वो थर्मोकपल घुसाने से अंदर का टेम्परेचर हम बाहर रीड कर पा रहे थे। तो जब उसकी सीटी बजी, जिस समय प्रेशर कुकर के अंदर से और सीटी बजी, विसल बजी और ये उठा और अंदर से स्टीम निकलना शुरू हुआ, उस समय मैंने उसका टेम्परेचर नापा था और वो कुछ 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, अब आप बताओ, पहला प्रश्न है आपसे कि जब हम प्रेशर कुकर में पानी रख करके खौलाते हैं तो वो कितने टेम्परेचर पर खौलता है? कितने पर खौलता है? 130 पे, हाँ 100 पे, 100 पे खोलता है। तो खाना जल्दी क्यों बनता है? अगर नहीं भी प्रेशर कुकर होता तो भी 100 पर ही खोलता, तो खाना जल्दी क्यों बनता है प्रेशर कुकर के अंदर में अगर 100 पे पानी खोलना है तो? और मेरा थर्मोकपल नाप के बता रहा है, जैसे में विजिल हो रहा है उस समय वो नाप के बता भी रहा है कि इट्स 130 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री उस आसपास का टेम्परेचर वहाँ पे अंदर में अपने को मिलता है। प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मेरा प्रश्न क्या है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि प्रेशर कुकर के अंदर का जो पानी है, जिस समय हमने प्रेशर कुकर में मैं खाना बना रहा हूँ, वो कितने डिग्री पे खोल रहा है? 130 पे खोल रहा है ना। अब आप सोचो, अब देखो कैसे हम साइंटिफिक थिंकिंग यहां से लेके जा सकते हैं। जिस समय मैंने उसका ढक्कन बंद किया और उसको आंच पे चढ़ाया, उस समय क्या प्रेशर था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ना। और वो अपना धीरे धीरे करके गर्म होने लगा, थोड़ा थोड़ा स्टीम आने लगा, तो वो अपना बॉइलिंग बहुत जल्दी पकड़ेगा। अभी उसमें प्रेशर बिल्टअप नहीं हुआ है। प्रेशर बिल्टअप हो जाता जितना होना चाहिए था तो उसका उठ जाता ऊपर और वो सीटी मार देता। अभी सीटी मारने में उसको 10 मिनट का वक्त लगना है। ठंडा जिस समय आप चढ़ाओगे और पहली बार जब सीटी बजेगी तो उसके अंदर में लगता है ना 5-7 मिनट, 10 मिनट का टाइम लगता है ना, तब जाके उसको उतना प्रेशर तैयार होता है। तो उसके पहले प्रेशर लो है, माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो अभी उतना नहीं हुआ है, लास्ट वाला जितना है उतना नहीं हुआ है। तो अभी बॉइलिंग पॉइंट उसका भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। शुरू में ही प्रेशर कुकर जब आपने बंद किया उसी समय से उसका बॉइलिंग पॉइंट 130 नहीं है। तो कब वो बॉयल कर रहा है, कैसे हो रहा है, और वो प्रेशर बढ़ता ही क्यों है? अंदर प्रेशर बढ़ता ही क्यों है? हाँ, उसमें हम वेपर और ठूंसते जाते हैं, क्योंकि सब तरफ से तो बंद किया हुआ है, तो जो पानी का स्टीम बन रहा है उसी से बन रहा है। पानी का स्टीम क्यों बन रहा है? बॉयल हो रहा है। तो 130 तक वो बॉयल का इंतजार नहीं करेगा कि जब 130 होगा तब हम बॉयल करेंगे। वो कभी नहीं होगा 130 अगर वो इंतजार करेगा तो, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने के लिए उसमें और स्टीम चाहिए, मतलब पानी का स्टीम बनाना है तभी प्रेशर बढ़ेगा, और पानी का स्टीम बना रहे हैं मतलब खोल रहा है। ओके, तो ये जो लॉजिक है, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जाना, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी कंपैटिबिलिटी, उससे ये निकालना, उससे वो निकालना। सुपरफिशियली अगर आप थिंक नहीं कर पा रहे हो तो आप सुपरफिशियली बोलोगे हाँ 130 डिग्री नापा है ना, वही बॉइलिंग पॉइंट है, राइट? प्रेशर बढ़ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट उसका ग्रेजुअली बढ़ रहा है और वो बॉयल करता जा रहा है, पूरे रास्ते वो बॉयल करता जा रहा है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है और प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। और वो प्रेशर बढ़ करके जब इस विजिल को उठाने के काबिल ये हुआ, दैट इज द मैक्सिमम, और उस समय 130 डिग्री है। उस समय उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 130 डिग्री है। तो प्रेशर कुकर का फिजिक्स कितना अच्छा है। और पहाड़ों पे दाल क्यों नहीं गलती? क्योंकि वहां
प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है तो क्या हुआ, मेरा प्रेशर कुकर के अंदर तो प्रेशर बढ़ा रहा हूं मैं, तब क्यों नहीं गलेगी दाल? जब मैंने इसको बंद कर दिया और गर्म कर रहे हैं, तो पहाड़ पे रहे और चाहे प्लेन्स में रहे, क्या फर्क है? अब जो बाहर में प्रेशर है वो पहाड़ों पर कम है और कानपुर में ज्यादा है, लेकिन जब मैंने इसको पूरा टाइट बंद कर लिया है तो उसके बाद बाहर के प्रेशर से इसको मतलब ही क्या है? ये तो अपना स्टीम बना रहा है ना, और अपना स्टीम बना करके अपना प्रेशर खुद बढ़ा रहा है, और वो उठेगी विसिल तभी जबकि उसके वेट के बराबर नीचे से स्टीम का फोर्स आएगा, तो उसी 130 पे इसको भी बॉयल होना है। तो पहाड़ों पर भी दाल गलेगी उतने ही टाइम में गलेगी जितने टाइम में यहाँ प्लेन्स में नीचे गलती है। तो ये जो लॉजिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में अगर आप कुछ करोगे ना तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्टेटमेंट से अर्थ निकाल करके, और अगर ये है तो फिर ये होगा, अगर ये है तो फिर ये होगा। ये जो अपना थिंकिंग वाला मामला है, वो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आप हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा, है वो कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ेगी एनालिसिस करने की सिचुएशन की। ओके, ये हमारा वो है चार्ट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है और ये ATM में इधर स्केल है और इधर आपका बॉइलिंग पॉइंट है, और हमने जब किया था तो मुझे 130 डिग्री मिला था। तो 130 डिग्री पे हमने एक लाइन खींची और लाइन खींच करके फिर हॉरिजॉन्टली यहाँ देखा, ये कुछ 2.3 वगैरह एटमॉस्फेयर आया। तो हमें पता चला इससे कि प्रेशर कुकर के अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर होता है जिस समय विसिल बजती है, दैट इज अराउंड 2.3 एटमॉस्फेयर। ये हमने कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन हमारा जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने थर्मोकपल डाला, उसको इसके साथ में जोड़ करके वी कुड मेजर और वी कुड कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड इन दिस प्रेशर कुकर व्हेन इट विसल्स। तो इस प्रकार के हम प्रोजेक्ट्स, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हमें लेने चाहिए। तो उससे वो जो चिंतन है, अपना साइंटिफिक जो चेतना है वो जगती है, और उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो बढ़िया चलती है। ऑल राइट, ओके, गिलास से बैटरी बनाए। ये क्या डाला? हाँ, अच्छा, ये थोड़ा धो देते हैं इसको। ये सीधा टैप वाटर है, ये डायरेक्ट टैप वाटर, कुछ भी नहीं मिलाया इसमें, और इस गिलास में डाल दिया हमने। और यहाँ पर ये मल्टीमीटर है, और कोई देख करके बताना और बाकी लोग उनका विश्वास कर लेना जो बोले। और हम क्या कर रहे हैं, किचन में मिल जाएगा ना स्टील का गिलास, स्टील का गिलास मिलेगा ना। मैं तो आज अपने किचन में जब गया ढूंढने के लिए कि क्या क्या लेकर के जाऊं और क्या क्या मुझे लगेगा, तो मेरे सारे बर्तन स्टील के ही मिले, उसके अलावा कुछ मिला ही नहीं। कोई भी मेटल का नहीं, ना एल्यूमिनियम का कुछ मिला, कढ़ाई वढ़ाई होगी शायद एल्यूमिनियम की, लेकिन सब बर्तन जितने भगोने तश्तरी जितनी भी चीज़ें मिली सब वही मिली। तो हमने फिर हमें एल्यूमिनियम का चाहिए था, तो ये जो किचन फॉयल होता है जिसमें आप खाना लपेटते हो, उसको मैंने फाड़ करके और उसमें से ये निकाला, ये एल्यूमिनियम निकाला। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एल्यूमिनियम को यहाँ मल्टीमीटर है, 2 वोल्ट पे लगा दीजिए इसको। ये मैंने एक एंड इसमें पकड़ लिया है और दूसरा एंड मैं अपने हाथ में रख रहा हूँ, और पता नहीं कौन देख पाएंगे मालूम नहीं, मैं तो नहीं ही देख पाऊँगा क्योंकि मैं पीछे की तरफ हूँ। और बस देखो, इसको मैं इसके अंदर डाल दिया है मैंने, इस एल्यूमिनियम को, और ये जो दूसरा सिरा है इसको गिलास की दीवार से मैं सटा रहा हूँ। कुछ दिखा क्या? पॉइंट, वो पॉइंट 0 पॉइंट है, वो दशमलव भी है, 0.64 वोल्ट की बैटरी बन गई। इतना आसान है किचन में बनाना, लैब में बनाओगे तो बहुत कुछ लाना पड़ेगा। हाँ, ये वाला को इसका सल्फेट का सॉल्यूशन लाओ, तो ये वाला कॉपर का लाओ, ये जिंक का लाओ, फलाना लाओ, तब जाके सेल बनता है। सीधा सीधा पानी है, और 0.64 वोल्ट का आपको यहाँ पे
दिख रहा है कि बन रहा है ना? 0.69 इस समय हो गया है, थोड़ा ऊपर नीचे करने से बदलता है। अब नमक है क्या? अब इसमें तुरंत नमक मिलाएंगे, तो नमक मिलाने से क्या होगा? नमक मिलाने से क्या होगा? वोल्टेज का क्या होगा? ये हमने इसके अंदर में थोड़ा सा नमक मिला दिया है। अच्छा ये बताओ नमक को घोलने के लिए या चीनी को घोलने के लिए चम्मच की क्यों जरूरत है? डाल दें, वो सॉल्युबल है, घुल जाए। नमक पानी में सॉल्युबल है ना, तो नमक में पानी में नमक डाल दिया, वो सॉल्युबल है, वो घुल जाए। उसको चम्मच चलाने का क्या जरूरत है? जल्दी हो जाए, इक्वली हो जाए। ओके, नहीं तो नीचे वाला ज्यादा नमकीन होगा, ऊपर वाला देखो ये पानी डालता हूं मैं इसमें, बर्तन की तरह यूज कर रहा हूं इसको मैं, हाँ, जस्ट एक कटोरी की तरह इसको मैं यूज कर रहा हूं। ये इसमें मैंने पानी लिया है और इसमें मैं नमक डाल देता हूं। 1 चम्मच नमक मैं इसमें डाल देता हूं भर करके और छोड़ देता हूं। जब तक ये सेशन चलेगा तब तक गारंटी है कि ये घुलने वाला नहीं है, उसके बाद भी बहुत देर तक नहीं घुलने वाला है। चम्मच लगा दूंगा कभी कभी घुल जाएगा। ये चम्मच क्या करती है? ये चम्मच घोलने में कैसे सहायता करती है? पार्टिकल्स को अलग अलग कर देती है। अरे बहुत बढ़िया, वो क्या बोलते हैं, फ्री फ्लो सॉल्ट है ये। सारे पार्टिकल अलग अलग है, कोई किसी से चिपका नहीं है। आप वो ऐसा करोगे ना, ढर नमक गिरेगा, वो चिपका रहता है तो वैसे नहीं गिरता। ये एकदम फ्री फ्लो वाला सॉल्ट है। सब पार्टिकल्स अलग अलग हैं और पानी में जाकर के तो और भी अलग अलग हो गए होंगे। ये नहीं घुलता है, ये घंटों नहीं घुलता है, 20-20 घंटे नहीं घुलता है। हमने अपने आश्रम में देखा कि भाई कितनी देर में घुलेगा ये अपने आप। 6 घंटे बीत गए नहीं घुला, 12 घंटे, 18 घंटे बीत गए नहीं घुला। थोड़ा थोड़ा घुला लेकिन फिर भी काफी सारा बचा ही रहा। वो 20-22 घंटे के बाद लगा कि हाँ कुछ घुला है। चम्मच का क्या रोल है? हाँ क्या करता है? बोलो क्या करता है? जल्दी से खोल देता है। हाँ जल्दी से, वही प्रश्न है ना कि वो चम्मच चलाने से जल्दी से क्यों घोल देता है? वेलोसिटी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की, तो टकराते जल्दी हैं। अच्छा, तो टकरा के टूटते हैं। ओके, हाँ टेम्परेचर, तो चलाने से टेम्परेचर बढ़ जाता होगा नहीं? हाँ जूल, वो जूल का इक्विवेलेंस है ना कि आप ऐसा वर्क करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ? लेकिन हाथ डालने से तो पता नहीं चलता है। चम्मच चलाने से अगर टेम्परेचर बढ़ता तो गर्मा गर्म चाय ला करके चीनी डाल करके 15-20 मिनट तक चम्मच चलाते रहते, वो गर्म बना रहता, बल्कि और गर्म होता रहता क्योंकि चम्मच उसमें चलती रहती। ओके, आप बहुत ओरिजिनल क्वेश्चंस आएंगे अगर आप किचन में जा करके और किचन में जो कुछ हो रहा है उसको करना चाहोगे, उसकी स्टडी करना चाहोगे वहां से और सवाल खड़े करोगे तो बड़े ओरिजिनल सवाल आएंगे। हमें भी ऐसे ही आए हैं, करते करते में से ही तो हमें दिखाई पड़े कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, हमने इसमें हमने नमक घोल दिया है और फिर वही काम हम कर रहे हैं। वैसे ही हम इसको पकड़ के, यह है क्या 2 वोल्ट पे, वैसे ही ठीक वही काम जो उस समय किया था वही काम हम कर रहे हैं। ये हमने यहां डाला और ये मैंने यहां सटाया। कितना है? 0 है। ये तो बड़ी बुरी बात है।
देखो देखो देखो, कितना है? पॉइंट वेरी कर रहा है सर, वेरी कर रहा है। ओह, टच करने इसमें टच नहीं कर रहा है हाँ, क्या क्या किया इसने? राइट, 0.843 हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह के कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जगह जगह का पानी जो है, सादे पानी को देख सकते हैं, उसके अंदर में किस तरीके के मिनरल्स मिले हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वगैरह वगैरह की स्टडीज यहाँ सबसे कर रहे हैं। आगे कुछ है? हो गया सर, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ये तो कुछ ये होती है। अब देखो दिमाग में घूमने लग गया, चम्मच क्या कर रही है, चम्मच क्या कर रही है। तो ऐसे है कि आप थोड़ी देर और सोचना एक दो दिन और सोचना इसके ऊपर कि क्या हो रहा होगा, और उसके बाद फिर अगर नहीं आएगा तो फिर किसी से भी यहाँ आयोजकों से आप कंसल्ट करना, और फिर आपका प्रॉब्लम जो है लोग मिलजुल करके सुलझाएंगे। लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सोचें। अगर मैं बता दूंगा तो आपको सोचना बंद हो जाएगा। एक अच्छे शिक्षक को प्रश्नों के उत्तर देने से बचना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ने कोई प्रश्न किया है तो मतलब उस स्टूडेंट ने कुछ सोचना शुरू किया है, गारंटीड है, गारंटीड है। जिन्होंने प्रश्न नहीं किए हैं वो भी सोच रहे होंगे जरूर, उसमें कोई हमें वो शंका नहीं है। लेकिन जिसने प्रश्न किया है, गारंटीड उसने सोचना शुरू किया है, तभी तो प्रश्न किया है। तो अगर सोचना शुरू कर दिया है उसने, तो हमें उसको सोचने का और मौका देना चाहिए ना, कि उसको बंद कर देना चाहिए। उसका सोचना बंद हो गया, हाँ उत्तर दे दिया मैंने तो बंद हो गया सोचना। सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है, सोचने के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, हम सही सोच पाए, निकाल पाए सॉल्यूशंस, उसके लिए उसको मौके देने हैं। इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं कि चम्मच घुमाने से क्या होता है, आप लोग सोचना है इसके ऊपर और लेके आना। और आजकल तो इतने सारे वो कम्युनिकेशन के साधन हैं, आप उसमें बताना कि क्या हो रहा है। जी, एक और तुक्का क्या? जो हम अपने छोटे-छोटे ग्रेन्यूल थे, हाँ, वो और छोटे हो सकते हैं घुल करके और छोटे हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो सुना है कि जब नमक घुल जाता है तो वो नमक रहता ही नहीं है। जो नमक होता है उसका एक NaCl स्ट्रक्चर बोला जाता है, नाम ही है उसका NaCl स्ट्रक्चर। हर एक जो सोडियम है वो 6 क्लोरीन से चारों तरफ से घिरा रहता है, ऑल दैट। और जब पानी में डाल देते हैं तो सोडियम आयन कहीं जाता है, क्लोरीन आयन कहीं जाता है, और सोडियम आयन के चारों बगल पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, उसको बंद कर देते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं। और क्लोरीन के भी चारों बगल ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वो भी पिंजरे में बंद हो जाता है। तो NaCl तो बेचारा रहा ही नहीं। तो ग्रेन्यूल छोटे बड़े क्या होंगे, घुल गया तो उसका तो पूरा कैरेक्टर ही बदल गया है। तो विचार करना। अब देखो हम एक दूसरा, ये शायद हमारा लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, 7 बज भी रहे हैं। अच्छा चलो, ये हमारा लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, ये ऑप्टिक्स से है। ये हमारे पास एक बॉटल है और उसमें फिर से मैं ये पानी डालना है ना पहले इसमें, हाँ, और साबुन वाबुन का है। और चूंकि हमें रोशनी दिखानी है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें साबुन वाला पानी डालेंगे। ये साबुन का पानी जो है सो इसी बाथरूम से लिया गया है, हाथ धोने के लिए जो है ना वहाँ पे, उसी से लिया गया है। और जरा सा केवल डालना है ताकि वो दिखाई पड़ जाए हमें रोशनी उसकी। दिखाओ, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल 2-3 बूंद केवल डालना काफ़ी है। अब इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ ये वेजिटेबल ऑयल। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ,
इसलिए नाम नहीं पढ़ के बता रहा हूँ कि कौन से ब्रांड का है ये, लेकिन रिफाइंड सोयाबीन ऑयल इतना पढ़ देता हूँ। ये इसके ऊपर डालूंगा। देखते हैं, आपको दिख रहा है क्या? अलग अलग दिख रहा है क्या? ऊपर तेल नीचे पानी, और उसका बाउंड्री दिख रहा होगा। अब हम ऊपर से इस पे लाइट डालेंगे, पहले तेल में जाएगी फिर पानी में जाएगी। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तेल की या पानी की? पानी की। क्यों? पानी नीचे है। तो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हो तो उनको ये सब बताओ कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो नीचे है, वो कम है, इमिसिबल है, दोनों लिक्विड इमिसिबल है, ये सब चीज़ें आप करा सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन मैं देने जा रहा हूँ उसमें हम इस पर लाइट डालेंगे, इस ऊपर के तेल में डालेंगे। पानी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो जब पानी तेल में से होके पानी में लाइट जाएगी, तेल में पहले ऐसे डालूंगा मैं, पहले तेल में जाएगी फिर पानी में जाएगी। तेल से जब पानी में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल मिलेगी, है ना? ओके, वेरी गुड। लेट अस चेक। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? टुवर्ड्स द नॉर्मल है कि अवे फ्रॉम? अवे फ्रॉम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? ऊपर वाले का। डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? नीचे वाले की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है? ऊपर वाले का। तो जिसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, वो हमारी जो डेंसिटी है जिससे फ्लोटिंग और सिंकिंग होती है, उस वाली डेंसिटी में और इस वाली डेंसिटी में कोई खास रिश्ता नहीं है। यहाँ उल्टा दिख रहा है ना? दिख रहा है ना उल्टा? और ये देखो तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना? ये भी हो रहा है। नीचे से भी लाइट डाल सकता हूँ। हम लोगों को केवल पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ये देखो डाल सकता हूँ ना, नीचे से भी, इधर से भी देख सकता हूँ, ऊपर भी देखना कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, टॉप सरफेस से कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है। कलर चेंज हो रहा है क्या? कलर चेंज हो रहा है क्या लाइट का? हमारे यहाँ बहुत ऑप्टिक्स के विद्वान लोग यहाँ पर हैं, तो जिस समय पानी में ये रोशनी है कलर चेंज नहीं हो रहा है, ग्रीन का ग्रीन है। लेकिन ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल में, सोयाबीन ऑयल में जब जा रहा है तो कोई येलो, कुछ येलो पिंकिश ग्रीन से बदल कर वैसा हो जा रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक, जिसके उत्तर हमें बिल्कुल पता नहीं है, वैसा भी फेनोमेना दिख जाता है। तो फिर वहाँ से उसको ढूंढना कि ये कैसे हो गया, पानी में क्यों नहीं हुआ, तेल में क्यों हुआ, वहाँ से फिर एक नया रिसर्च प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है करना। तो इस तरीके से किचन में अगर हम काम करें और अपनी दृष्टि रखें कि कहाँ कहाँ कैसे कैसा साइंस हो रहा है, तो बहुत सारा साइंस और साइंटिफिक एप्टीट्यूड्स वो लेके आ सकते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड होगी ये। यस सर। एंड मेनी मोर। थैंक यू वेरी मच। सर आप एक दो क्वेश्चन जरूर लेंगे? हाँ, ले सकता हूँ। उत्तर दूं या ना दूं, क्वेश्चन तो ले ही सकता हूँ। ओके, इफ देयर आर क्वेश्चंस। Few comments or questions? या कमेंट्स एंड क्वेश्चंस। पहले कमेंट तब क्वेश्चन। हाँ जी, राइट। अगर लो प्रेशर में बना सकते हैं तो फिर ऊपर भी बना ही सकते हैं जीरो प्रेशर। मुझे पता नहीं था कि अमित को खिचड़ी इतनी पसंद है कि स्पेस में भी जाके खिचड़ी खाएंगे।
वही टाइम तो क्या है ना कि ज़्यादा सामान लेके आना चाहिए, कम लेके नहीं आना चाहिए। जितना टाइम दिया जाए उससे ज़्यादा लेके आना चाहिए। तो और भी बहुत कुछ है। हाँ। All right. So anyway, so let us thank Professor H.C. Verma for a fantastic, fantastic lecture. Thank you so much, sir. Yeah. Again, I would like to thank the Popley family for introducing this aspect to our life here. And by the way, there is a single-page, very nice Hindi write-up which Professor Popley had made regarding food and science. तो एक है ये पानी को खौलना और आँच, प्रेशर कुकर, बिना ईंधन का भात पकाना और कितना पानी. So these are some sheets you can take and just enjoy. This is something that he wrote long ago and very pertinent to what we did today. Anyway, thank you so much and sorry for spilling over in time, but thanks again. Thank you.